خطاب کر رہے تھے. ویسے بھی محترم حضرات، ایک کامیاب تاجر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن بھر کا محاسبہ کرتا ہے، پھر مہینے بھر کا، پھر سال بھر کا. جس تجارت میں وہ جاتا ہے وہ حساب لگاتا ہے کہ میں گھاٹے میں ہوں، خسارے میں ہوں یا فائدے میں ہوں. تو یہ تو دنیا ہے. ہر ایک مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے کہ ایک روز قیامت قائم ہونے والی ہے. ہم سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہونے والے ہیں. بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. ہم سوچیں، ہم وچار کریں کہ ہم کس جگہ پر چل رہے ہیں. اگر اللہ نے ہمارے کسی عمل کے بارے میں پوچھ لیا کہ تم نے کیوں کیا تو کیا جواب بنے گا؟ پھر ہائے ہو کے علاوہ کچھ نہیں ہو پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے. ہم سوچیں کہ ہماری دینی حالت کیا ہے، ہماری دینی کیفیت کیا ہے، ہمارا گھرانہ کیسا ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری سوچ ہمیشہ آخرت کی طرف ہو. ہم آخرت میں خسارے اور نقصان کا یا گھاٹے میں نہ پڑ جائیں. اس لیے ہم ایسے اعمال کریں کہ ہماری آخرت سدھر جائے. دنیا نہ سدھری تب بھی چل جائے گا، لیکن آخرت اگر کسی کی بگڑ گئی تو میرے بھائیوں وہاں صرف تمنا یا آرزویں انسان کر پائے گا. کبھی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا کہے گا، اے اللہ تو پھر مجھے دنیا میں لوٹا دے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے کانوں سے سن لیا کہ آخرت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عذابات کیا ہیں. اے اللہ پھر موقع دے. لیکن موقع پھر نہیں ملتا ہے. آدمی جب موت کے قریب پہنچتا ہے تب بھی اس کو آگے آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، برزخ میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اس وقت وہ محسوس کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یعنی موت کا وقت آدمی تمنا کرے گا. ایک تو اے اللہ تو نے مجھے موقع کیوں نہیں دیا، دوسری تمنا اے اللہ تھوڑی اور مہلت دیتا تو میں نیک لوگوں میں شامل ہوتا، میں نیک کام کرتا. تو میرے بھائیوں موت آئے، فرشتے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا حساب لگائیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے نیک اعمال کرتے ہیں روزانہ اور کتنے گناہوں کے کام کر رہے ہیں. گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے اور نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے. بہرحال شیخ بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے تقریر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کے ہمارے دوسرے خطیب ہیں فضیلت الشیخ ارشد جمال نوری مدنی حفظہ اللہ. میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے موضوع علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں. آپ کا ٹائم بھی 20 منٹ ہے. سبھی خطبہ سے میں پھر گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کا لحاظ رکھیں.
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. لائق احترام حاضرین، سب سے پہلے تو میرا ایک سوال ہے یہاں موجود تمام لوگوں سے، کیا ہم لوگ واقعی ایمان والے ہیں؟ کسی کو بھی ایسا اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایمان والا ہے تو اس کے لیے ایک بشارت ہے قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ لیکن ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اگر عالم دین بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، جانکاری بھی ہو، اس کا فہم بھی ہو، تب ہمارے درجات کو اللہ رب العالمین ڈبل بلند کرتا ہے، دگنا بلند کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے جانا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ علم دین کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، علم کئی پرکار کے ہیں، کئی طرح کے ہیں۔ علماء نے اس کی تقسیم دو حصوں میں کی ہے۔ ایک ہوتا ہے علم نافع، ایسا علم جو فائدہ دینے والا ہے، جس سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا، قوم و ملت کو فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا، ذاتی فائدہ ہوگا۔ اور ایک علم ہے جو علم غیر نافع ہے، فائدہ مند علم نہیں ہے۔ کوئی ایکٹنگ سیکھ رہا ہے، کوئی ڈائریکٹنگ سیکھ رہا ہے، کوئی فیشن ڈیزائنر بن رہا ہے، یہ سب جو علم ہے وہ بیکار علم ہے، غیر نافع علم ہے۔ لیکن جو نفع بخش علم ہے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ نفع بخش علم ہر کسی کو سیکھنا چاہیے، اسلام میں اس کی آزادی ہے۔ نفع بخش علم کیا ہے؟ اس کی مثالیں چند ایک: ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اور وہ تمام علوم جس سے انسان خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنی قوم اور ملت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ان تمام علوم کا سیکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر چند لوگ ڈاکٹر بن گئے تو کافی ہے، سب کو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے۔ چند لوگ انجینئر بن گئے کافی ہے، سب کو انجینئر بننا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک علم ایسا ہے جو سب پر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، سب پر فرض ہے۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی پر وہ علم حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ کون سا علم ہے آخر؟ کون سا علم ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر واجب کر دیا؟ میرے بھائیو، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے حدیث کا علم ہے۔ اگر ہمارے اندر دین کا علم نہیں ہے تو یہ ایسی واجب چیز تھی جس کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اگر ہم نے شریعت کو نہیں سمجھا، اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، کیا تقاضا کر رہی ہے، اس کو ہم نہیں جانتے تو یقین جانیے کہ اس واجب کے اندر ہم نے کوتاہی کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو ہمارے لیے واجب قرار دیا۔ ایک مسلمان کے اوپر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں، سب سے پہلے توحید۔ بہت سارے مسلمان بھائی نہیں جانتے توحید کسے کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت نہیں پائی جاتی ان کی، کیونکہ ان کی علم کی کمی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جان لو اس بات کو، علم حاصل کر لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رسالت، کون ہے ہمارے رسول، کہاں پیدا ہوئے، کیسے نبی بنائے گئے، کیا کیا مشقتیں برداشت کی، بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ اسلام کا ایک اہم ترین ستون جسے ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسلمان ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ چل جائے کہ نماز کے اندر انسان کیا پڑھ رہا ہے، کیا اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کا علم ہو۔ وضو کیسے بنایا جاتا ہے، پاکی کیسے حاصل کی
किसी चीज का इल्म नहीं है। मेरे भाइयों, मैं कितनी चीजें गिनाऊं, ये ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर हर मुसलमान को जानना चाहिए। इन्हीं चीजों के ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज सीखना हर मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी है, अगर वो मुसलमान है तो ये दीन का इल्म उसके ऊपर सीखना वाजिब है। मेरे भाइयों, हम और आप गौर करें कि इसकी इतनी अहमियत है। मैं आपको एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया हुआ कि वमा कान मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, कि जिहाद में तमाम मोमिनों को एक साथ नहीं निकल जाना चाहिए। फलौला नफ़र मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व युनज़िरू क़ौमहम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। इस आयत के अंदर मैं मफ़हूम बताता हुआ चलूं। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तमाम मोमिन एक साथ जिहाद पर न निकल जाया करें, बल्कि होना ये चाहिए कि मोमिनों में से कुछ लोग निकल करके जाए, इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। और जब इल्म हासिल करने के बाद क्या मकसद हो उनका मकसद ये होना चाहिए कि वो अपनी कौम में आए तो उस कौम के लोगों को उस इल्म को कौम के लोगों तक पहुंचाए, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कराए, ताकि वो लोग डरे, उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हो, तकवा पैदा हो। जिहाद जैसी अजीम चीज, उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कह दिया कि इल्म को नहीं भूल जाना। ऐसा ना हो कि जिहाद में मस्त हो जाओ और इल्म जैसी अहम चीज तुमसे ओझल हो जाए, तुम्हारी नजरों से गायब हो जाए और उस पर ध्यान ना रख सको। ये ऐसे वक्त में आयत नाज़िल हुई है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौजों को मशरिक की तरफ भेज रहे थे, मगरिब की तरफ भेज रहे थे। इस्लाम की फौजें चारों तरफ रवा थी, फुतूहात का सिलसिला जारी था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीद की, अपने नबी को बताया कि ठीक है ये जो हो रहा है ठीक है, लेकिन इल्म की अहमियत अपनी जगह पर है, इल्म से मुंह नहीं मोड़ना है। कुछ लोगों को खास कर दीजिए, और होना चाहिए कुछ लोग ऐसे लोग समाज के अंदर जो अपने आप को इल्म के लिए वक्फ कर दे। इस आयत के बाद मदीना के अंदर पढ़ने पढ़ाने का ऐसा माहौल पैदा हो गया कि हर कोई सीखने लगा, हर कोई पढ़ने लगा। सहाबा के अंदर एक हौसला बसी, एक कंपटीशन शुरू हो गया। सहाबा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने के लिए बेचैन होने लगे। सहाबियात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकाजा करने लगी कि अल्लाह के रसूल पूरे 10 मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए बालियां लगा दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को भी दर्श दिया करते थे। कई सहाबियात जो आलिमा फातिला थी, इल्म से भरी हुई थी। कई ऐसे सहाबी हैं जिनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, मुकफ्फिरीन सहाबा में से हैं, जिनके पास इल्म भरा हुआ था। ये सब कैसे हुआ मेरे भाइयों? ये सब इल्म की अहमियत को समझने से हुआ। इल्म दीन की अहमियत को लोगों ने समझा, उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर नाफिज किया, तब जाकर के इन लोगों के अंदर ये इल्म आया। मेरे भाइयों, हम और आप गौर करें कि हम दीन के इल्म को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं। हमारा और आपका इल्म दीन को लेकर के क्या सोच और क्या नजरिया है? हम अपने बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं मौलवी हम अपने बच्चों को? नहीं बनाना चाहते। क्या कमाएगा बेचारा, कैसे घर चलाएगा? ये जो हमारी छोटी सी सोच है रिस्क को लेकर के, क्या आपने जाहिल गरीब को नहीं देखा कि जो दीन का इल्म नहीं हासिल करता वो भी गरीब रहता है? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। क्या आपने उलमा को मालदार नहीं देखा? बहुत सारे उलमा को आपने देखा होगा मालदार। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी छोटी सी सोच है कि अगर हमने अपने बच्चे को आलिम दीन बना दिया तो क्या कमाएगा, इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि रिस्क का ताल्लुक पहले से इल्म से है ही नहीं। रिस्क जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे देना चाहता है वैसे ही दे देता है। एक जाहिल को भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कमा रहा है, और एक आलिम को भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कमा रहा है। इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हम देखें कि पहले के लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे कि जाओ जाओ बगदाद जाओ, जाओ दिमश्क जाओ, जाओ मिस्र जाओ, जाओ जाकर के इल्म हासिल करो। और वो लोग जाते थे और इल्म का समंदर बन करके लौट कर आते थे अपनी कौम के अंदर।
अपने अपने बच्चों के ताल्लुक से कितना ज्यादा तवज्जो दी है, हम उनके ऊपर कितना ज्यादा दीन के इल्म को लेकर के खर्च करते हैं, ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ उलमा की भी किल्लत है, ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ना जो हमारे पास उलमा है उनकी कदर करते हैं, क्योंकि दीन से हमें शगफ नहीं, दीनी इल्म की हम अहमियत को समझते नहीं। मेरे भाइयों, इस सोच से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए। और एक अहम चीज जो यहाँ देखने के लिए मुझको मिली कि तालीमी निस्बत यहाँ है ही नहीं इल्ला माशाअल्लाह। औरतों की तालीम के लिए क्या है, तकरीबन कुछ नहीं है सिवाय एक मदरसे के जो हमने अभी ज़ियारत किया। मेरे भाइयों, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। हम और आप अपने बच्चे पर कितना ध्यान देते हैं? कुछ भी ध्यान नहीं देते। हम और आप तो काम करने निकल जाते हैं, बच्चा टिफिन किसके पास रहता है? माँ के पास रहता है। माँ जब जाहिल रहेगी, माँ को जब मालूम ही नहीं होगा अल्लाह उसके रसूल की बातें, माँ अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? हम यही सोच रहे कि हमको हमारी माँ ने क्या सिखाया। मेरे भाइयों, अगर बच्चियों के अंदर तालीम नहीं पाई जाएगी तो ऐसे ऐसे मसाइल जन्म लेंगे जिसके ताल्लुक से हम सोच नहीं सकते। एक तो वैसे ही फितने का दौर है, हर तरफ फितने हैं, माल का फितना है, इक्तिदार का फितना है, काफी कुछ फितने हैं जो हम देखते रहते हैं। ऐसे में हम बच्चियों की तालीम पर तवज्जो भी नहीं देंगे तो आखिर कौन है जो तवज्जो देगा और कौन है जो हमारी बच्चियों को दीनी इल्म से हम आरास्ता और पैरास्ता करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चियों की तालीम के लिए फिक्रमंद हो, खास तौर से दीनी तालीम के लिए फिक्रमंद हो। अगर हमारी बच्चियां आलिमा होंगी, अगर हमारी बच्चियां काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ेंगी, अगर हमारी बच्चियों को उनके जो तहारत के मसाइल हैं, उनके जो पाकी के मसाइल हैं, उनका इल्म होगा तो एक ऐसा माशरा क्रिएट होगा, एक ऐसा समाज जन्म लेगा जो वाकई दीनदार समाज होगा, जो ऐसा समाज होगा जिसकी कल्पना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। वो ऐसा समाज होगा जो सहाबियात की तरफ होगा, वो ऐसा समाज होगा कि जो ताबईन और तबा ताबईन की तरह होगा। क्यों? क्योंकि माँ की गोद से जब बच्चा निकलेगा तो एक अच्छा खासा इल्म लेकर के निकलेगा, एक अच्छा खासा अखलाक लेकर के निकलेगा, और जब वो जाएगा जहाँ पर भी इल्म को हासिल करने के लिए उसमें मजीद निखार पैदा होगा। लेकिन जब यही से कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, और आखिर में चल करके बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे हम तो बच्चा टूटी फूटी कुछ बातें दीन की जान तो जाएगा, लेकिन वो बात उसके अंदर नहीं पैदा होगी जो एक पढ़ी लिखी माँ और एक आलिम दीन माँ के बदन से जन्मे हुए लड़के के अंदर होगी। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत है कि हम तालीम के निस्बत पर ध्यान दें। जरूरत है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारी बच्चियों के लिए हमने कितनी हद तक मेहनत की है, हमने क्या उनको पढ़ाया लिखाया। इल्म की जरूरत आज के इस दौर में जितनी है शायद पहले कभी नहीं थी। क्या हम नहीं देख रहे कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ टीम चलाया जा रहा है, कुछ ना कुछ किया ही जा रहा है ताकि मुसलमान जो है बदनाम हो जाए, बदनाम हो जाए मुसलमान। लेकिन हम हैं कि खाने तरबूज में मस्त। आखिर जवाब कौन देगा? उलमा नहीं होंगे तो कौन जवाब देगा? कैसे हम उनका रद्द कर सकेंगे? मेरे भाइयों, कई मसले हैं। इनकार हदीस का मसला लीजिए, मुसलमानों में बहुत सारे लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो खाली कुरान को मानेंगे, खाली कुरान को मानेंगे। एक वाकया याद आ रहा है मुझे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का, और इससे तालीमी निस्बत की अहमियत भी आपको समझ में आ जाएगी। औरतों की तालीम की अहमियत कि औरतों के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों के अंदर इल्म को हासिल करने का कितना शौक था कि एक बार अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी औरत पर लानत भेजी है जो टैटू बनवाती है अपने जिस्म के ऊपर, नक्श निगार बनवाती है, टैटू बनवाती है, गोला बनवाती है। ऐसी औरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत भेजी है। एक औरत खड़ी हो गई, देखिए मुझे क्या नशा, एक औरत बहुत खड़ी हुई और उसने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ऐसा कुरान में नहीं लिखा हुआ, कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है गोदना गुदवाने वाली पर, टैटू बनवाने वाली पर।
कुरान के अंदर इस तरह का कोई हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है खुदा गुदवाने वाले पर, खुदा गुदवाने वाले पर। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कुरान में ये लिखा है कि वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जो चीज दे उसे ले लो और जिस चीज से रसूल रोके उसे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल ने लानत की है, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो औरत टैटू बनवाती है, खुरना बनवाती है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। क्या कुरान में ये नहीं है? तो उसने एतराफ किया कि हाँ, कुरान में ये कहा गया कि रसूल जिस चीज का तुम्हें हुक्म दे उसको ले लो, जिस चीज से तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। और रसूल ने हमें गुदना गुदवाने से मना किया है, रसूल ने हमें बताया कि जो गुदना गुदवाती है उस पर अल्लाह की लानत। ऐसी औरतें आज कहाँ मिलेंगी? मेरे भाइयों, जरूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। तो मैं कहिए लगा कि आज बहुत सारे मसाइल हमारे समाज के अंदर है, बहुत सारे मुसलमान जो हदीसों को मानते हैं कि अगर उलमा नहीं होंगे हमारे समाज के अंदर तो कैसे हम उनका मुकाबला करें। आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान एक बात लिख देता है और उसको मंसूब कर देता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या किसी सहाबी की तरफ। जब इल्म होगा ही नहीं, हमारे लोग जानेंगे ही नहीं, हमारे पास उलमा ही नहीं है, हमारे समाज में लोग ही नहीं है कि हम पूछ सके कि मौलाना ये चीज सही है कि गलत है, ये वाकई कुरान की आयत है या इंसान अपनी तरफ से उपवास कर रहा है? कैसे जानेंगे? इस चीज के ऊपर हमें गौर करना है, इस चीज के ऊपर हमें गौर करना है कि जितने भी फितने हमारी तरफ आ रहे हैं आखिर ये कैसे रुकेंगे। मेरे भाइयों, जब हमारे पास उलमा होंगे और वो भी ऐसे उलमा जो माहिर हो, कब होंगे कब? जब हम उनके ऊपर मेहनत करेंगे, जब हम अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे, जब हम अपने बच्चों को लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको आला तालीम के लिए अपने से जुड़ा करेंगे। जहाँ कहीं पर भी दुनिया के कोने में इल्म दीन वाफर मिकदार में सही तरीके से मिल रहा है, भेजिए वहां पर, जाने दीजिए वहां पर, वहां जाकर के इल्म को सीख करके आएंगे। और जैसे सहाबा किराम उन्होंने इल्म को सीखा, अपने बच्चों को सिखाया, जब अपनी जमीन पर लौटेंगे तो अपने लोगों के अंदर उस इल्म की नशो इशात करेंगे और अपने लोगों को इल्म सिखाएंगे। लेकिन अगर आज हमने अपने बच्चों को दूर नहीं किया, आज हमारे एरिया में ऐसे मदरसे और ऐसे स्कूल नहीं है जो दीनी जहाँ पर वाफर मिकदार में और सही तरीके से मिलता है, और हम अपने बच्चे को अपने पास ही रखे रहे, मोहब्बत में चिपकाए रखे रहे, उसको भेजे नहीं कहीं, ना उसके ऊपर कुछ खर्च किया, तो याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या कहा कि तीन चीजें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। उसमें से एक चीज क्या थी? और ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा पहुंचाए, उससे महरूम हो गए। हमने अपने बच्चे को बनाया ही नहीं उस लायक, या हमको लाने नहीं बने ही नहीं कि हमारे मरने के बाद हमको सवाब मिलता रहे। दूसरी चीज अव्वल सालिह नेक लड़का जो अपने वालिद के लिए दुआ करे। जब हम अपने बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कुछ लिखाएंगे नहीं, आलिम बनाएंगे नहीं, काहे के लिए वो दुआ करेगा हमारे लिए? मेरे भाइयों, इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को समझे कि आज के दौर में जितनी ज्यादा जरूरत इल्म दीन की है, शायद पहले के दौर में उतनी नहीं थी। आज फितने ज्यादा हैं, आज मसाइल ज्यादा हैं, आज हमें और ज्यादा तैयारी के साथ उलमा को पैदा करने की, वो आलिम बनाने की जरूरत है। अपने बच्चों को भेजिए जहाँ कहीं पर भी वाफर मिकदार नहीं मिलता हो,
तमाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ये तौफीक दे कि हम अपनी बच्चियों को खास तौर से आलिमा बनाएं। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ये तौफीक दे कि हम खुद भी आलिम हो